Okay. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Vasudeva Sutam Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Krishnam Vande Jagadgurum. Okay, so I just want to start with a very simple thing that we all are looking for something in life, right? What is that one thing that we all want? Who wants to say it? What are we looking for at like a core of our being? What are we looking for? Maybe Shanti. Shanti, yeah, true. So, and Shanti comes with what? जब मन कैसा होता है तब शांति मिलती है अपने को. जब मन प्रसन्न होता है, right? विचलित नहीं होता. हाँ, विचलित नहीं होता, प्रसन्न होता है तब. So we all are looking, चाहे कोई मटेरियल चीज ढूंढ रहा हो या स्पिरिचुअल चीज ढूंढ रहा हो, उसका आधार वही है कि नहीं? मटेरियल चीज भी इसीलिए ढूंढता है कि भाई मैं सुखी हो जाऊं, काम भी बहुत करेगा, और उसको नेम फेम किसी को कुछ चाहिए तो भी वो बेस उसका वही है, राइट? सो भगवद गीता इज वन प्लेस where it's capable of giving you the ultimate bliss. So that's what the purpose. Because हम लोग क्यों पढ़े? Should we study it because it's a religious book? Should we study because somebody said it? No, we want to do it because it's promising that highest thing. That's why we want. And then it has, been tested by so many people also. It's not just like, somebody said it, but most of the great philosophers and all of them have dwelt into it, learned from it. In fact, like Tejo Menanji was saying in one of his lectures, Tejo Menanji, by the way, Manjula ji is our head of our Chinmaya mission. He used to be, and now, but he still does a lot of discourses. And we have another head, but he has a very prominent status. He has done a lot of sadhana, a lot of lectures and all that. He said this is one scripture that has been, means all kinds of people have read it, commented, debated, and it's been translated into so many different languages. And even in the Western philosophers, all the big ones have studied it, and they quote from it and all that. So it has something of very significance from where it is coming from. Most of people know, and I'm just going to the basic in case if you have forgotten, and if Manjula ji said that she has not studied it, so I'm just bringing that up. So it is from the Mahabharata story, and Mahabharata is considered itihas. From Mahabharata and Ramayana are considered itihas. Itihas में संस्कृत का word होता है so it happened. That's the meaning of that itihas. इस प्रकार हुआ. So एक्चुअली में हुआ, और ये महाभारत की स्टोरी में भगवद गीता बीच में आती है. जैसे कि देर आर 2-3 ways of looking at the whole thing. How is महाभारत की लड़ाई वड़ाई के बीच में ये कैसे है? So one of the Swamis, he put it so nicely. He said कि लोगों को ना juicy stories बहुत पसंद है. कोई लड़ाई झगड़ा होता है, सबके कान खड़े हो जाते हैं सुनने के लिए. So कितने क्लेवर है कि बीच में डाल दिया वो. वॉर शुरू होने के पहले खूब कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों में, पांडवों और कौरवों में, और लड़ाई होने वाले. अब क्या होगा उस जानने के पहले क्या होगा, भगवद गीता को बीच में डाल दिया. एक दृष्टिकोण है ये कि भाई कैसे तो अगर कोई जूसी स्टोरी पढ़ना चाहता है लेकिन बीच में ब्रह्म ज्ञान भी मिल जाएगा उसको, मे बी ही विल गेट इंटरेस्टेड इन इट. बिकॉज अगर महाभारत को देखो तो उसका जो मेन ज्वेल है वो भगवद गीता ही है.
बाकी तो स्टोरी वोरी ठीक है, सब ऐसे ही, लेकिन जो सार उसका एक देख लो तो वही है. और ये बिकॉज इट इज़ हिस्ट्री, तो ये कब हुआ एक्चुअली, देयर इज अ एग्जैक्ट डेट ऑल्सो. इट्स 3139 years before Christ. So I calculated it has been 5160 years exact. And they have a date also when it was delivered. It was delivered on December 9th. So, from the English calendar, of course, our calendar is slightly different the way we approach it. But if you want to put it in English calendar, it's December 9th. And so they celebrate Gita Jayanti on that day. And there are 18 chapters in Gita. Interestingly enough, there were 18 days that the war continued. जिसने महाभारत की कहानी सुनी है उसको पता होगा, 18 दिन चला था. उसमें 18 अध्याय भी है. और महाभारत में 18 पर्व है. पर्व मीन्स सेक्शंस. सो coincidence or I don't know. And you know that 18 is a age where children become adult. So see the significance of 18. Pretty interesting, is 18. So another thing is that what is in Bhagavad Gita? So simply putting, there is a Atma Gyan is there. Atma Gyan, who am I? मैं कौन हूँ? So because what Krishna Bhagwan mentions there, हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना दुनिया में, जो हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम है, नंबर 1, या दुख बोलो, या grief and all that happens because I don't know who I am. I have identity crisis. So because when we are born and all that in this earth, we learn from our parents, teacher, outside school, this, that. Nobody teaches us who we really are. They always teach you material science and things like that. So this identity crisis is the one that gives rise to all the grief and unhappiness and all that. So what Krishna Bhagavan is saying, that once you learn that, you can manage your life beautifully, So that's why we want to go into it. So the Atma Gyan to bol diya, lekin this is also Sar of the Vedas. And how it is Sar of Vedas? मंजुला जी, आपने वेदास का तो सुना है कि वे 4 वेद हैं, राइट? सो वो जो 4 वेद है ना, दे आर सो बिग एंड वॉल्यूमनस दैट नन ऑफ अस एक लाइफ टाइम में हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाएंगे. स्पेशली ये कलयुग में जैसी हमारी मेमोरी वगैरह इतनी वीक होती है, हम लोग कैसे करेंगे? सो वो उन वेदों में जो मेन चीज़ है ना, वो उपनिषद हैं. उपनिषद आपने सुना होगा, वर्ड्स उपनिषद. सो वैसे तो, और उपनिषद क्या है, लेट मी टेल यू फर्स्ट कि क्या है उपनिषद. सो वेदों को ना डिफरेंट भागों में डिवाइड किया गया है. सो तो शुरू में तो वो कर्म कांड वगैरह है, जो आप मंजुला जी अब बिफोर वी स्टार्टेड द क्लास आई वाज सेइंग ना, पूजा पाठ ये वो, उसका एक पर्पस होता है. और दुनिया में ना लॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ डिजायर्स. व्हेन लॉट ऑफ डिजायर्स आर देयर, we are not very keen to get the आत्मज्ञान, बिकॉज वो डिज़ायर में ही हम पड़े रहते हैं. सो वो शास्त्र कहते हैं ठीक है, अगर डिज़ायर है तो उसको फुलफिल कर लो, कोई बात नहीं, धर्म से करो, ये नहीं कि अधर्म से करो. सो देर आर वेज टू फुलफिल दोज डिज़ायर. तो उन्होंने कई पूजा यज्ञ ये वो सब दिया हुआ है कि जिसको डिज़ायर फुलफिल करनी कर लो. लेकिन हमें पता है कि जब हमारी डिज़ायर फुलफिल हो जाती है तो भी हम लोग शांत नहीं रहते हैं, कुछ और चाहिए, एंड किसी को सब कुछ भी मिल जाए संसार में, फिर भी उसको कुछ कमी महसूस होती है. तब वो प्रश्न पूछता है कि मैं क्यों आया हूँ, हैव आई जस्ट अक्यूमुलेटेड एवरीथिंग जस्ट टू डाई एंड गो अवे एंड ऑल दैट. सो देन द उपनिषद आर द वन विच गिव्स यू दोज आंसर्स. सो जो रियल ज्ञान ऑफ द वेदास आर इन उपनिषद, पर उसके लिए वो प्रिपेयर करना पड़ता है. सो पहले वो डिज़ायर फुलफिलिंग, फिर उपासना कांड भी है जहाँ पर यू हैव ऑल्सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट उपासनास to purify our mind. Excuse me, I missed something. So what did you say? After the Karam Kand, the next part of the Vedas is Upanishads? No, Upasana Kand is like they have given some names. I don't remember exact. If you want exact thing, a lot of these Chinmayananji's books in the beginning they will have it.
if you want the names, I can bring it out. But basically, there is a Karam Kand to fulfill all the desire through dharmas, and there is Upasana Kand. Upasana Kand mein, all the different type of upasanas are given, and they are helpful in purifying our mind. Because without purity of mind, we cannot approach this knowledge. We won't understand, we'll misunderstand, and there won't be. And then last is Upanishad. And that's why it's called Vedant also, right? Everybody's heard the word Vedant. Vedant means Vedon ka ant, but it's not in that sense कि वेदों का अंत हो गया. Ant of the Veda means end of the Veda. उसके बाद, that's the highest knowledge. उसके बाद कुछ जरूरत ही नहीं है. You have got the final thing that you're looking for. हम लोग होते हैं ना, हम लोग ढूंढ रहे हैं हमको क्या मिले जिससे हमको satisfaction हो जाए. That's what that knowledge is. That is in the Upanishad. So Upanishad is nothing but the last part of the Vedas, and the way the Upanishads are, they are like conversation between the student and a teacher. So जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है वो है टीचर वहाँ पे, और जो स्टूडेंट है उसका ये हाल है कि भाई उसने वो मतलब सब कुछ दुनिया में प्राप्त काइंड ऑफ कर लिया है, पढ़ लिया है, वेदों को भी पूरा पढ़ लिया, उसको भी फाइनल एक्सपीरियंस नहीं हुआ है. तो वो टीचर के पास जाता है, और ये देयर इज अ कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में होता है ये उपनिषद, कि वो स्टूडेंट प्रश्न पूछता है और टीचर आंसर देता है. उस क्वेश्चन आंसर सेशन दैट उपनिषद का है. बट ये स्टूडेंट कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है. स्टूडेंट ने शास्त्र पढ़े हुए हैं पूरे सारे, लेकिन अभी उसको थोड़ा कंफ्यूजन है कोई चीज़ों में. हाँ, तो ये सिचुएशन है, और वो टीचर उसको अपना एक्सपीरियंस से बताता है कि कैसे आगे बढ़ना टू गेट दिस ओन एक्सपीरियंस. सो दैट्स व्हाट दिस उपनिषद्स आर. सो व्हाट भगवद गीता इज, it's sar of all the Upanishads. So there are 108 Upanishads, but उसमें से 11 are like most commented upon. And we already did Mandukya Upanishads in our class, which our class started. But हम लोग actually हमारी class Upanishad से शुरू हुई थी. And right now we are doing Kathopanishad. So we are slowly tackling the Upanishads also. But Upanishads में ना एक approach लिया गया है to get to that Brahma Gyan. So each Upanishad has its own khasiyat of taking an approach. What Bhagavad Gita has done, it's taken from all of them and presented to you in such a way that it is easier to understand. So अगर आपने भगवद गीता को पढ़ लिया ना अच्छे से और समझ लिया या आत्मसात कर लिया, so आपको सारे वेदों का निचोड़ मिल गया. बिकॉज वेदों का निचोड़ उपनिषद में है और उपनिषद का निचोड़ भगवद गीता में है. सो दैट्स व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ भगवद गीता इज. बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह. नहीं तो लोग दे हैव सम स्ट्रेंज थियरीज अबाउट भगवद गीता, इट्स अ रिलीजियस बुक, ये वो. और उसमें ना मतलब भगवद गीता में ऐसा अप्रोच लिया गया कि कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, उपनिषद स्टाइल ही लिया गया एग्जैक्टली. तभी भी इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अर्जुन एंड कृष्ण भगवान. सो कृष्ण भगवान इज कंसिडर्ड भगवान एंड अर्जुन इज लाइक अस. एंड एक प्रश्न ये आया कि भाई महाभारत में तो इतने बड़े बड़े धुरंधर लोग थे, भीष्म पितामह एंड देयर आर सो मेनी ऋषि मुनि. कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना आत्मज्ञान देने के लिए? बिकॉज Arjun represents all of us. Arjun is like a very ambitious person. He has his family. He has to take a job. He has to fight the war. He has to do all that. और मतलब कृष्ण भगवान ये संकेत दे रहे हैं इसमें कि जीवन की कोई भी लड़ाई हो, हम उसको, वो तो सोल्जर था, इसके लिए उसके लिए तो फाइटिंग था. हम लोग दूसरे ढंग की फाइट्स होती है ना हमारी लाइफ में, फैमिली के चक्कर और बिजनेस के और काम के और फ्रेंड्स के और फलाना ठिकड़ा पता नहीं कितने सारे. तो वो कहते हैं कि आत्मज्ञान कभी भी कहीं भी किसी को भी मिल सकता है. और आप देखो ये इस मतलब मार काट के बीच में दिया गया. तो मतलब कोई कहता है कि ओ मेरे पास टाइम नहीं है,
भगवत गीता पढ़ने का या कोई भी ग्रंथ पढ़ने का, तो कृष्ण भगवान संकेत दे रहे हैं, देखो अर्जुन ने को तो मैंने यहाँ पर वॉर के बीच में बताया, तुम किस लिए चिंता कर रहे हो कि तो नहीं है मीन्स इफ वी आर रेडी, भगवान इज रेडी टू टेल यू, no matter who you are, where you are, doesn't matter. So that's another very important thing about it. And then another thing is that what Arjun represents from our point of view is, a person who gets confused and has a dilemma about things. हम लोग के साथ भी ऐसा होता है ना, मैं ये करूं या वो करूं, कितनी बार दिन में होता है हमारे पास, राइट, ये प्रॉब्लम, मेरे को क्लैरिटी कैसे मिले कि मैं क्या करूं. सो अर्जुन की सिचुएशन देखो, मैं ये जानना चाहती हूँ मंजुला जी कि आपने महाभारत की स्टोरी तो मालूम है ना आपको? हाँ, ओके. सो महाभारत में क्या हुआ कि पांडव और कौरव दिखाए थे, राइट. वो भी एक बहुत सिंबॉलिक चीज़ है, बिकॉज महाभारत में 100 कौरव थे और 5 पांडव. तो ये एक्चुअली हमारे मन की दशा दिखाई गई है कि हमारे मन में अच्छे विचार और बुरे विचार दोनों होते हैं. बुरे विचार ज़्यादा होते हैं, बुरे विचार 100 सिंबॉलिक, हाँ, अच्छे विचार सिर्फ 5. अब क्या लड़ाई होएगी तो क्या होगा, चांसेस है कि वो कौरव जीत जाएंगे, बुरे विचार जीत जाएंगे, बिकॉज उनकी सेना विशाल है. लेकिन महाभारत सिंबॉलिक ये है कि वो 5 पांडव, वो लोग कृष्ण भगवान की ओर समर्पित थे. और उसमें जो मेन विचार है, जो अर्जुन है, हु इज लाइक अर्जुन का जो कैरेक्टर दिखाया गया है ना, कि ही इज अ ग्रेट वॉरियर बट ही हैज अ वेरी सॉफ्ट हार्ट. ही हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ब्रेवरी एंड सॉफ्टनेस. तो वो वाला जो विचार है, वो अगर भगवान की ओर समर्पित हो जाए ना, तो विजय तुम्हारी होगी. तो वो 5 पांडव संगठित थे, नंबर 1. तो वो 5 अच्छे विचारों को संगठित करके और तुम भगवान के ऊपर अर्पण कर दो. तो क्योंकि अर्जुन भगवान की ओर झुक गया, बोला भगवान आई एम कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू, यू गाइड मी. दैट इज द थिंग. एंड लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट Krishna Bhagwan's life and all that in our classes many times. And sometimes okay, he was like a ग्वाला and he did बंसी बजाई, ये किया वो किया. मगर कृष्ण भगवान का पूरा लाइफ ले लो ना, सो एक जगह कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पार्थ, मेरा जन्म ही तुम्हारा सारथी बनने के लिए हुआ. क्यों? क्योंकि मुझे गीता का ज्ञान देना था. बिकॉज एट वन पॉइंट अर्जुन वॉज लिटिल बिट हेसिटेंट. You gonna become my सारथी? No, that's not right. I don't want you to become my, it's like कोई अपना ड्राइवर बनने को तैयार हो जाए कोई, And Krishna Bhagwan said, don't worry. This is the prarabdha, I'm come here to do this. So अगर एक चीज कोई ले लो कृष्ण भगवान की जिंदगी की, that's what it is, that, And then, this is a little bit off topic, but I can't help it to bring this up. Remember we were discussing in our class, we were saying कि dishes करते time कितना बोरिंग काम है कि नहीं? बोला कि नहीं हमने? मैं सोच रही थी आज सुबह, अगर कृष्ण भगवान ड्राइवर बन सकते हैं उसके और वो ड्राइवर बनना मतलब ये नहीं कि खाली गीता का ज्ञान दिया उन्होंने, उन्होंने रथ को भी मेंटेन किया. तो उनका जॉब था टू मेक श्योर द हॉर्सेज आर टेकन केयर ऑफ, उसको चारा देना, अगर हॉर्स इंजर हो जाए तो उसकी दवा वगैरह करना. वहाँ पर 10 नौकर नहीं बैठे थे करने के लिए. Krishna Bhagwan was doing it himself in the battleground, all those things. कृष्ण भगवान कर सकते हैं, तो हम लोग को क्या प्रॉब्लम है डिशेस और बाथरूम साफ करने में? This thought just came to my mind, and I thought I'll just bring it up anyway. So that's the significance कि भाई this is talking, कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको एड्रेस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अर्जुन को चुना. और अर्जुन के जो आप प्रश्न देखोगे ना, बिल्कुल वही प्रश्न है जो हमारे में आते हैं. और अर्जुन भी कोई साधारण वैसे स्टूडेंट नहीं है. अर्जुन ने भी सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं. मगर क्या हो गया, जो मैं और गीता जी और आप बात कर रहे थे
कि लोग है ना वो लॉप साइडेड हो जाता है, ये जो रिलीजन है ना लॉप साइडेड हो जाता है, doing too much of the puja part and forgot why you are doing it, going to the mandir and people are looking at each other's clothes instead of why you have come. All those negative things come, somebody has to come and fix it. So जितने भी ये साधु संत महात्मा रियलाइज सोल्स हुए हैं ना हिस्ट्री में, उनका यही पर्पस है कि वे आके कुछ सही करते हैं, जो गड़बड़ हो रहा है ना उसको सही करते हैं। कि भाई अगर बहुत ज़्यादा रिचुअलिज्म वगैरह होता है तो बोलते कम करो इसको, आत्मज्ञान की तरफ ध्यान दो। और कोई सिर्फ आत्मज्ञान की ओर ध्यान देता है और संसार की ओर नहीं देता है तो दरिद्र हो जाते हैं ना लोग, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो कैसे बैलेंस करना उसको। सो भगवद गीता का क्या है कि मेन इम्पोर्टेंस यही है कि इट्स नॉट अगेंस्ट प्रोग्रेस एंड समृद्धि. It's not telling you that, you just sit and meditate and forget about the world. No, it's like balancing the both. And that's why you have Arjun and you have Krishna Bhagwan. And they say when they are together, and when Arjun is ready to fight, means after he has got kind of realized, I have to fight the kind of battle of my life. That's how I'll put it, because we have to put ourselves symbolically in it. So हम लोग soldiers तो नहीं है, but we are fighting the battle of our life. So when they are together, then the last verse is there, no? Which says, and do you have it memorized, Gita ji? Yatra yogeshwarah krishno yatra partho dhanurdharah तत्र श्रेर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा. Yeah, so वहाँ पर अच्छी नीति होगी, वहाँ पर ध्रुव नीति is like solid one, and then वहाँ पर prosperity होगी, and what are the other things? Shri is prosperity, Shri, ध्रुवा नीति and what? विजय होगी वहाँ पे. Yes. So see how it is together, everything. So that's what this whole significance of Bhagavad Gita is, that you get the Brahma Gyan and you get prosperity at the same time. Who doesn't want that? That's what it is. So let's see. There are so much stuff and I'm trying to see which angle to take in this, but where it's coming from, at least we got that, And then I wanted to, since you are going to join the class, and one of the main thing was, what is in chapter 1, 2, and 3, and what is in 4. So, the scenario of Bhagavad Gita, that what happened was that before the war started, Arjun was all ready to fight. And उसका parallel हमारी life में ऐसा होता है कि हमें कोई काम करना हो ना, और हमें वो skill आती है अच्छे से, तो हम जैसे आपका समझो, आपका एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, जस्ट एन एग्जाम्पल. हाँ मंजुला जी, कि आप कुकिंग में एकदम नंबर 1 हो, एटलीस्ट हमारे ग्रुप में. ओके, सो आपका कोई है ना, कोई आपको एक बड़ा कुकिंग शो में फर्स्ट टाइम लेकर गया समझो, स्किल तो आपके पास बहुत है, आप शायद आँख बंद करके भी खाना बना सकते हो, इतना है आपके पास स्किल. लेकिन वहाँ जाकर और जब आपने ऑडियंस की तरफ देखा और सब देखा, तो आप यू स्टार्ट गेटिंग कोल्ड फीट. अरे मेरा काम अच्छा होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, वो टेलीविजन मेरे ऊपर आ रहा है, मैं अच्छा का यू गॉट अ कोल्ड फीट ऑल ऑफ अ सडन, एंड यू कैन डू इट, सो अर्जुन की कोई ऐसी स्थिति हो गई कि वो एकदम तैयार था, और जब वो आया वहाँ पर बैटल ग्राउंड में, बड़े एंथुजियाज्म से आया. फिर उसने कहा कि बट ही वॉज इज ऑल्सो सेंसिटिव पर्सन, राइट. सो ही टोल्ड कृष्ण भगवान, मैं लड़ने के पहले ना देखना चाहता हूँ दोनों आर्मीज को, आप मुझे ना बीच में ले चलो. और वो ये वाला दृश्य हम सबको बड़ा फेमस दृश्य है कि वो भगवद गीता कभी भी दिखाते हैं, तो देयर आर 2 आर्मीज एंड बीच में खड़े कृष्ण भगवान और अर्जुन. सो कृष्ण भगवान इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट. उनको पता था कि जो एनिमी लाइन में खड़े हैं लोग, उसमें जो 2 लोग हैं ना, वो उसके अर्जुन के लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं. अगर वो दुर्योधन तो आएगा तो वो सीधा मार डालेगा दुर्योधन को. मतलब इतना, he doesn't care about दुर्योधन that much. दुर्योधन तो बड़ा दुष्ट है,
मगर दो इतने भले लोग ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस एनिमी लाइन में खड़े हैं. एक उनका गुरु द्रोणाचार्य. द्रोणाचार्य का वो सबसे बेस्ट शिष्य था. आई मीन दोनों का जो दिखाया है ना रिलेशनशिप, वेरी स्वीट, गुरु एंड शिष्य का रिलेशनशिप. एंड हिज भीष्म पितामह ग्रेट ग्रैंडफादर, एब्सोल्युटली ही अडोर्ड हिम. सो कृष्ण भगवान जब रथ लेके गए बीच में, तो उन्होंने ऐसे एंगल पर रखा कि वो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को देखे. तो जब उसने देखा ना, वो सडनली भूल गया कि मैं एक सोल्जर हूं. उसको याद आया, हाय राम, ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे भीष्म पितामह, माय ग्रेट ग्रैंडफादर. he lost his identity over there from the worldly perspective also. सोल्जर की क्या एक होती है जिम्मेदारी कि भाई वो इसलिए नहीं आया है रण मैदान में कि वहां पर आके विश्लेषण करे कि भाई ये युद्ध अच्छा है या बुरा. वो तो सब पहले हो चुका था. महाभारत के आप पढ़ेंगे तो शांति दूत भी भेज दिए गए थे. सब कुछ करके फाइनल डिसीजन 2 पार्टीज में आया. कोई विकल्प नहीं रह गया, अब लड़ना ही है. And Arjun is one of the great commanders of the army. So his job was not to do this kind of back and forth thinking anymore. He should focus on his duty, and he couldn't because उसको मोह हो गया. हम लोग बोलते हैं ना, जो मोह है इसलिए हुआ क्योंकि वो अपना जॉब भूल गया वहाँ पे, वो किस लिए खड़ा था वहाँ पे. और जब उसके मन में भय आ गया, भय इसलिए आया या तो मैं मरूंगा या इनको मारना पड़ेगा मुझे. दोनों सिनेरियोज बुरे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसका जो हाल हुआ ना, जो बोलते हैं ना नर्वस ब्रेकडाउन हमारे मॉडर्न लैंग्वेज में, वो हो गया उसको. और नर्वस ब्रेकडाउन के सिम्टम्स क्या होते हैं? पसीना आना शुरू हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है, हाथ से चीज़ें छूट जाती हैं, और all those different symptoms, it's described in that first chapter. That's what happened to him. But उसके पहले जब वो उसको मोह हुआ ना, एकदम से ये सब नहीं हुआ. Then he started justifying himself. And justifying क्या होता है कि बोलते हैं ना कि एक कहावत है, खट्टे हैं अंगूर. I cannot do this, so how do I camouflage it by saying goody stuff? So he started telling कृष्ण भगवान, उसने सारे धर्मशास्त्र कोट करने शुरू कर दिए वगैरह वगैरह कि अरे वॉर तो बहुत बुरी चीज़ है, वॉर होएगा तो लोग मरेंगे, विधवा हो जाएंगे औरतें, और पूरा देश का सत्यानाश. दोज थिंग्स आर ऑल ट्रू, बट वो वॉर आवश्यक इसलिए था. एंड द एनालॉजी इज कि अगर किसी के बॉडी में कोई आर्म में वगैरह कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए जो पूरे बॉडी को में फैल कर ख़त्म कर सकता है, तो आर्म काटना ही पड़ेगा. दैट्स द सिचुएशन ऑफ द वॉर वॉज. But he started justifying, and he kept talking and talking, and he thought कि कृष्ण भगवान उसकी हाँ में लाएंगे और बोलेंगे हाँ भाई बिल्कुल सही कहा तूने और तू लड़ मत. और वो कहता है कि एंड में, फर्स्ट चैप्टर के एंड में वो कहता है कृष्ण भगवान से, तो मेरा कंक्लूजन ये है कि मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, और चाहे ये लोग मुझे मार दें. It's such a noble thing to do to avoid this war. I'm going to just run away and not deal with this. And उसका वेपन्स गिर गया उसके हाथ से और वो बैठ गया अपना, और उसका बुरा हाल हो गया, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया. तब कृष्ण भगवान ने उसको थोड़ा डांटा, बिकॉज ही वॉज लाइक हिज फ्रेंड एंड हिज रिलेटिव एंड दे वर वेरी वेरी क्लोज. तो बिगिनिंग ऑफ चैप्टर 2 में कृष्ण भगवान ने उसको थोड़ा डांटा. और वन ऑफ द एनालॉजीज इज लाइक दिस, अगर कोई एकदम ही रोना धोना शुरू कर दे और सुने ही नहीं बात, तो लोग उसको एक चांटा लगाएंगे सो दैट ही वेक्स अप. तो उसको ऐसा थोड़ा चांटा लगाया कि उसको कहा कि कहाँ से आ गई ये वीकनेस तेरे दिमाग में? यू आर सच अ ग्रेट वॉरियर, व्हाई आर यू आर एक्टिंग लाइक अ वुमन राइट नाउ? नॉट इवन वुमन और अ मैन, लिटरली उसको कहा कि यूनक, नीदर मैन नॉर वुमन. And drop this meanness of heart, meaning जब हमारा मन और दिमाग है ना एकदम नैरो माइंडेड हो जाता है, हम सोच ही नहीं पाते हैं कुछ, so he ऐसा हो गया उसका दिमाग. So he himself kind of said कि look,
देन ही रियलाइज, जब कृष्ण भगवान ने उसको डांटा ना, तो उसको सडनली रियलाइज हुआ, ओ माई गॉड, आई थिंक आई एम कन्फ्यूज्ड. अगर मैं वॉर लड़ता हूँ तो लोग मारे जाते हैं, इतना नुकसान होता है, नहीं लड़ता हूँ तो मैं अपना धर्म नहीं निभा रहा हूँ. दैट इज द डिलेमा ही केम अक्रॉस. सो वी हैव अ सिमिलर सिचुएशन इन आवर लाइफ, यू नो. इस तरफ भी कुछ बुरा दिख रहा है, इस तरफ भी बुरा दिख रहा है, इधर थोड़ा अच्छा दिख रहा है, इधर थोड़ा, मैं कौन सा चीज़ करूँ. सो देन व्हेन ही, उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई, तब वो कृष्ण भगवान को उसने सरेंडर किया. तो सरेंडर करना मतलब क्या? नाउ ही इज रेडी टू लिसन टू कृष्ण भगवान. तो कृष्ण भगवान इज लाइक द ग्रेटेस्ट साइकियाट्रिस्ट आउट देयर. अगर किसी के मन में बहुत कुछ भरा हुआ हो ना, उसको हम लोग कुछ बोलना शुरू करेंगे, वो सुनेगा नहीं पर्सन. कोई बहुत क्रोध में हो, कोई बहुत इमोशन में हो, वो नहीं सुनेगा. उसको पहले अपना दिल हल्का करना पड़ेगा. तो कृष्ण भगवान ने उसको समय दिया. तो चैप्टर 1 में वो अपना दिल हल्का कर रहा है, सारी बातें. और कृष्ण भगवान एकदम शांत खड़े हैं, कुछ नहीं बोलते कृष्ण भगवान. लेकिन जब सेकंड चैप्टर में बिगनिंग में उसने ये डिक्लेयर, और उसने और भी कुछ बातें कही सेकंड चैप्टर में, कि भाई यू नो, आप कह रहे हो कि उठो लड़ो, और यहाँ तो ये 2 लोग ऐसे खड़े हैं जो, मैं, आप कह रहे हो उन पे तीर बरसाओ, और मैं तो फूल डालने के योग्य हैं, मैं तो उनके चरणों में फूल अर्पित करना चाहता हूँ, और आप कह रहे जाके लड़ो उनसे, यू नो. सो दिवस अभी भी उसका यही चल रहा था. लेकिन जब वो उसने सरेंडर कर दिया ना कृष्ण भगवान को, तब कृष्ण भगवान ने उससे बोलना शुरू किया. दैट्स व्हाट इन द बिगनिंग ऑफ चैप्टर 2, यू नो. सो तब कृष्ण भगवान ने क्या किया कि उसको बोला कि तू बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है पंडित की तरह, मगर काम पंडितों वाले नहीं कर रहा है तू. और वो इसलिए कहा कि लाइक आई सेड कि अर्जुन ने शास्त्र पढ़ा था, लेकिन वो भूल गया सब कुछ. अभी ये अपने जब मोह में आ गया ना, सब कुछ भूल गया. तो कृष्ण भगवान उसको याद दिला रहे हैं. एंड ऑल्सो another problem that happened over time, it happens कि like we were discussing कि जो शास्त्र का main meaning है वो नहीं रहता है, but other things starts coming. So Arjun obviously the main चीज़ है वो नहीं है उसके पास, and the other things are coming. When he surrendered, that's the time Krishna Bhagwan starts talking, and then he gives him the highest knowledge. He gives him the highest knowledge first. एंड दिस इज ऑल्सो उपनिषद का स्टाइल है ये. उपनिषद जैसे कि जो रेगुलर स्टडीज करते हैं ना हम लोग, एजुकेशन इन द सेक्युलर वर्ल्ड, उसमें हम लोग बेस से जाते हैं. पहले सब जो एलिमेंट्री चीज़ें हैं वो सीखते हैं, फिर उसके बाद वी स्टडी मोर एंड वी गो अप. हियर इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट इन उपनिषद. दे गिव यू द हाइएस्ट नॉलेज फर्स्ट. इफ समबडी कैन अंडरस्टैंड, well and good, they can finish the class right there and there. If you don't understand, then they go step down until you get it. So कृष्ण भगवान ने उसको चैप्टर 2 में हाईएस्ट नॉलेज दिया. और कृष्ण भगवान ने कहा कि you are that Brahman, that Atma. I'm just giving you very briefly now because I can't, there's too much there, so I'm going to give very briefly now. You are that Atma, and you are thinking you are the body, but you are not. You are not the body, mind and intellect. You are that Atma. और उन्होंने वो आत्मा का नेचर क्या है वो बताया, you know, कि भाई आत्मा इज इटर्नल, इट्स ऑलवेज देयर. एंड वो जो फेमस श्लोक है ना भगवद गीता के, वो सब चैप्टर 2 में है कि भाई आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई भिगो नहीं सकता, यू नो, कोई काट नहीं सकता, वगैरह वगैरह, वो सब उसमें है. Then he told them the highest knowledge. Now the question is, fine and dandy, you have the highest knowledge. How to get there? That would be the second question, right? तो जो उसको कहते हैं योग शास्त्र, means a path to get that knowledge. So Bhagavad Gita is also a yoga shastra. So it is a sar of all the Upanishad and also the yoga shastra. और आपने योग वर्ड, आई थिंक हम हमारी क्लास में अभी सबको मालूम पड़ गया what it actually means. यहाँ पर योगा बोलते हैं, but actual word is योग. योग means to unite with the higher. So in Bhagavad Gita, every chapter का नाम ends with, you know, like karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga.
something that unites you with the higher is योग. एंड जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसका नाम है अर्जुन विषाद योग. तो somebody will say विषाद कैसे योग बन गया जी? इसलिए बना योग क्योंकि विषाद की वजह से वो आगे बढ़ा इस मामले में, यू नो. सो उसका जो नर्वस ब्रेकडाउन था वो एक मीन्स बन गया उसके यूनाइट होने के with the higher. That's why it is called Arjuna Vishad Yuga. So like that each chapter. So in chapter 2, भगवान ने उसको highest ज्ञान दे दिया, but obviously it's a difficult thing. It's a subjective thing. It's not something like भगवान बोला भगवान क्या है, nobody can show you कि भाई ये भगवान है कोई ऑब्जेक्ट की तरह. It is your own nature, so it is a difficult subject. उसको सब कुछ समझ में obviously नहीं आया, इसके लिए दूसरे चैप्टर चले सारे. क्योंकि chapter 2 is a summary of the entire Gita actually, you know, but in brief. He did not elaborate everything. उसके बाद जो chapter 3 to 18 जो चले ना वो अर्जुन के प्रश्नों पे चले, या कभी कभी भगवान ने खुद भी स्टार्ट किया because he wanted to clarify. So Bhagavad Gita is basically chapter 2 is like a summary and the rest of it is like elaboration of that summary, you can say. So there are 2 chapters in Bhagavad Gita which have the summary. One is chapter 2 and one is chapter 18. So 2 is more like, you know, what is coming in the forwarding chapter. It gives a good glimpse. 18 is a review of everything with a more polishing of the points. In each one he gave a little more points to polish with. So that's how it is. So in chapter 2, so भगवान ने उसको हाईएस्ट ज्ञान दिया, फिर उन्होंने उसको पाथ बताया. पाथ ये बताया, और आप ये बड़ा फेमस है, ये सभी ने सुना होगा, चाहे हम लोगों ने गीता पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन हमने ये सबको पूरे ढंग से सुना है. अच्छा, उन्होंने रेज हैंड किया है. I'm trying to see. Uma ji, did you want to ask a question? No. Okay, I don't know. No, who's oh, you are on 2 different ones? I'm so confused. ये भी एक उमा ही कह रहे हैं. Anyway, never mind. Where was I? I lost my chain of thought. What was I talking about? Arjun and A very famous shlok of chapter 2. You were going to mention that? Okay. I think you were also talking about the path. Yes. So, anyway, I'm going to go back to the path and then maybe it'll come to me what I was talking about. So the path was, the famous, yes, karmanyevadhikaraste, that's what I was going to say. Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana. कि भाई कर्म करो, उसके फल की चिंता मत करो. ये हम लोग सुना है ना, सभी ने सुना होगा, भले गीता पढ़ी या नहीं पढ़ी है, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ साइंस है. आई कैन नॉट गो इनटू द होल थिंग राइट नाउ, बट बेसिकली क्या है कि जब हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट हमेशा हमारे अनुसार नहीं आता है. एवरीबडी हैज एन एक्सपीरियंस, राइट? हम लोग एक प्लान करते हैं. देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश ऑल्सो, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, यू नो. सो बिकॉज द रिजल्ट कम्स अकॉर्डिंग टू द टोटलिटी, एंड हम लोग को इतना ना बुद्धि है ना हमारे में कैपेसिटी है टू नो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स. सो इट कम्स अकॉर्डिंग टू भगवान्स लॉ, not your understanding of it. No. So what Krishna Bhagwan is telling over there, firstly you should know what your duty is. Number 1. अगर ड्यूटी गलत पता हो तो काम नहीं हो सकता. So first you should know your swadharma. They call it swadharma. And then once you know that, you keep doing your duty and do not worry about the result because it is not in your control. You will never know what the real thing result is because it's not in your control. That's why तुम्हारा अधिकार ही नहीं है उसके ऊपर, you know. So you keep doing your duty. So it's telling you the path, but to do that duty, the main message he gives over there is selflessly, means without selfish things. Me and mine छोड़ के तुम करोगे ना, तो तुम्हारा mind purify होता जाता है. That's what it is. So कृष्ण भगवान ने उसको, you know, कर्म योगा के बारे में बताया. That's the most famous verse over there.
एंड देन जब अर्जुन ने सुना तो अब अर्जुन अपने डिप्रेशन से थोड़ा बाहर निकल आया अब. ओके, जब बाहर निकल आया तो अब उसका ध्यान जा रहा है इस कृष्ण भगवान की बातों पे, सो ही थिंक्स कि अच्छा दुनिया में ऐसे भी लोग हैं. और कृष्ण भगवान ने एक स्टेटमेंट किया उसमें कि जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है ना, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसको शोक से परे हो जाता है. बिकॉज मेन थिंग क्या हुआ था, अर्जुन को शोक कर रहा था ना, वो बैठ के रो रहा था कि ये होगा वो होगा, शोक हो गया था उसको. सो उसको लगा कि वाह ये तो बहुत अच्छी स्टेट है, कैन आई गेट दिस स्टेट. डाउट हो रहा था उसको, ऐसे भी लोग होते हैं. तो उसने प्रश्न पूछा कृष्ण भगवान को कि अगर किसको आत्मज्ञान मिल गया हो तो वो कैसे बिहेव करता है. And the verse says, how does he sit and how does he walk? But it's a symbolic way. How does he sit means when he sits in meditation, what is his state of mind? When he transacts with the world, what is his state of mind? How does he do it? So Krishna Bhagwan ने पूरा elaborate किया, and there's a lot to learn from it. उसको बोलते हैं man of steady wisdom in English. संस्कृत में उसका है स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थिर और बैलेंस हो गई हो. So all that is there in chapter 2. And then Krishna Bhagwan praised the knowledge. कि भाई knowledge, यहाँ पर आत्मज्ञान. When we talk about knowledge in Bhagavad Gita, we are not talking about the worldly knowledge. We are talking about, self-knowledge. मैं कौन हूँ वाला knowledge. So he's saying that this knowledge is the highest. तो जब अर्जुन ने सुना, अभी वो तैयार नहीं है लड़ने के लिए. अभी भी वो ढूंढ रहा है कैसे भाग जाऊं मैं. अच्छा है ज्ञानवान सुनना अच्छा है, लेकिन अभी उसको कन्विंस नहीं हुआ वो. तो सडनली उसको लगा अरे मेरे को एक एंगल मिल गया. मैं कृष्ण भगवान को पूछता है, अगर आप नॉलेज को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आत्मज्ञान को, तो मुझे ये इतना घोर कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? क्यों कह रहे हो कि मैं लड़ूं? Why should I do that? Why don't I just go in the Himalayas and sit and meditate? Sounds very good, right? But Krishna Bhagwan ने हामी नहीं भरी. हाँ ठीक बोल रहा है. No, that's not true. Why? Because your mind is not ready for Atmagyan. Mind is not completely pure because आत्मज्ञान आत्मसाध नहीं कर पाएगा तू. So he's telling जो कि हमारी ड्यूटी सेल्फलेसली करने से हमारा माइंड प्योर होता जाता है. और जब माइंड प्योर हो जाता है, फिर जब हम आत्मज्ञान सुनते हैं, तब हमको समझ में आता है, एंड देन वी कैन रीच दैट ब्लिस दैट ही इज टॉकिंग अबाउट. सो अर्जुन की ड्यूटी वाज एज अ सोल्जर, ही हैज टू फाइट द वॉर, बट ही हैज टू फाइट सेल्फलेसली. ही कैन नॉट फाइट मेरे को किंगडम मिल जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा. नॉट लाइक दैट. नो, टू फाइट क्या बोलते हैं, इनजस्टिस टू द पीपल. दैट्स व्हाई ही वाज डूइंग इट. That's what Krishna Bhagwan tells them, that when you do your work selflessly, you purify your mind, and then you are fit for this knowledge. It's like an entrance ticket to some place. या हम लोग स्कूल से जब कॉलेज में जाते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ना, ये एंट्रेंस एग्जाम है. So that's what it is, So फिर उन्होंने जो कर्म योगा के बारे में चैप्टर 3 में उसको बहुत डिटेल में बताया. So the whole chapter 3 is about karma yoga and how to do the work selflessly. So there are many different aspects of it, and I will give you because we make this chart for the children, so maybe that's what I will do, because it will be easier to summarize it, otherwise it's a little bit harder. So what he told them that how to do work selflessly. So एक वर्ड है, आपने सभी ने सुना होगा, यज्ञ करना. हम लोग हिंदी में यज्ञ बोलते हैं, इन दे प्रोनाउंस इट यज्ञ इन संस्कृत. यज्ञ में ना आहुति दी जाती है, लेकिन जो पुराने जमाने में यज्ञ करते थे ना लोग, वो सार्वजनिक यज्ञ होता था. So everybody used to get together and then do the yagna, and the whole idea was to purify the atmosphere. तो रेन वगैरह आएगी, right? So ये symbolic है. So जो लोग आते थे ना, मतलब बीच चौराहे में किया जाता था यज्ञ, अपनी अपनी कैपेसिटी से सब लोग काम करते थे उस यज्ञ में. Somebody is very good at making mala, they will make a mala. Manjula ji is great in cooking, she will bring the food, and Anil ji maybe
good in organizing, he'll organize whatever, everybody contributes, but nobody's doing it for themselves, right? Everybody is doing so that everybody benefits, because end में जो प्रसाद मिलता है वो है रेन, सिंबॉलिक, सभी को बराबर मिलती है. वैसे ही तो कृष्ण भगवान ने बोला यज्ञ स्पिरिट में काम करो. Don't think of me and mine, think of everybody and work, and then you get the best results. And then he also told him कि पूरा जो यूनिवर्स ऐसे ही चलता है. जो जितने भी यूनिवर्स में काम हो रहे हैं प्रकृति द्वारा, प्रकृति यज्ञ स्पिरिट में काम कर रही है. एंड यज्ञ स्पिरिट में ना 2 चीजें मेन है. एक तो कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, और एक तुम उसको किसी हायर चीज के लिए डेडिकेट करते हो. तो बोलते हैं एक ऑल्टर होता है कि मैं इसके लिए डेडिकेट कर रहा हूं ये काम, विच इज हायर ऑल्टर देन यू. एंड यज्ञ में हमेशा कोई सेक्रीफाइस होता है. तो ऐसा नहीं कि मैं यज्ञ में तो चली गई और मैंने कोई काम धाम किया नहीं और प्रसाद लेके मैं घर वापस आ गई बस. दैट इज, उसको भगवान ने बोला चोर है तू. सो अगर सोसाइटी में काम, ही एक्चुअली यूज द वर्ड चोर इन भगवद गीता, दैट यू आर दैट पर्सन इज अ थीफ, सोशल थीफ उसको कहा गया. सो और हम लोग को भी गुस्सा आता है ना कि कोई बैठे बैठे खाए, काम वाम धाम नहीं करे, because it is a natural thing that everybody should contribute. And then so he's saying do in that spirit, and उससे क्या होगा, you will get the highest. तो material prosperity भी मिलेगी और आत्मज्ञान के लिए तुम्हारा मन प्योरीफाई होएगा. And then how to kind of do this, मेरे को कहाँ से प्रेरणा मिले कि मैं ये करूँ. So भगवान ने बोला कि ये प्रकृति को कैसे बिहेव करती है उससे तुम सीखो, और प्रेरणा लो, नंबर 1. और नंबर 2, वर्क लाइक द एम्बेसडर ऑफ भगवान. एक एम्बेसडर का क्या काम होता है. अब ये बनाने वाला है ना, आई हर्ड द न्यूज़ कि ये जो अपना LA का मेयर इज गोना बिकम द एम्बेसडर टू इंडिया. माय सन कीप सेंडिंग मी दिस इंफॉर्मेशन. आई थिंक इज नॉमिनेटेड फॉर इट, ऑलरेडी डिसाइडेड, आई डोंट नो. एम्बेसडर जब जाता है किसी कंट्री में तो वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, और उसका हर बिहेवियर कंट्री की दृष्टि से देखा जाता है. अगर कोई बुरा काम करता है तो वो कंट्री पर लाछन लगता है, राइट. और अगर वो कोई काम करता है तो डिसीजन लेता है, तो वो कभी भी पर्सनल डिसीजन नहीं लेता कि व्हाट इज इन फॉर मी. नो, नेवर. ही ऑलवेज थिंक व्हाट इज गुड फॉर माई कंट्री, दैट्स द डिसीजन आई हैव टू टेक. दैट्स हाउ यू वर्क इन दिस वर्ल्ड, लाइक हैव अ हायर ऑल्टर. और समझो अभी हम भगवान समझे नहीं कौन है भगवान, विच इज मेनी टाइम्स हैपन. किसी हायर पर्सन को ले लो अपना आइडियल, गुरु को ले लो, किसी संत महात्मा को ले लो, that I'm doing it for him. That also good. If you cannot do the highest, take a higher perspective. That's how you do it. That's what he said. So that's all in chapter 3. And then chapter 4, there are many things in chapter 4. So one of the main things it is कि अभी तक कृष्ण भगवान, मतलब अर्जुन सोचता था कि कृष्ण भगवान एक बहुत वाइज पर्सन है, मेरे फ्रेंड है, मेरे रिलेटिव है. उसको उसकी डिविनिटी का पता नहीं था अभी तक. तो कृष्ण भगवान ने ना वन ऑफ द स्वामीज जोक्स, अपना विजिटिंग कार्ड दिया उसको कि मैं कौन हूँ. जो विजिटिंग कार्ड इस तरह से दिया कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो ज्ञान है ना, आत्मज्ञान, ये टाइम से लुप्त. तो मैंने ये दिया था आत्मज्ञान, सूर्य को दिया था पहले, विवस्वान, और सूर्य ने इक्ष्वाकु को दिया. एंड ऐसे करके वो शिष्य गुरु परंपरा से आया और ये लुप्त हो गया था. मैं वापस दे रहा हूं ये ज्ञान तुम्हें, राइट. सो अर्जुन तो बड़ा हक्का बक्का रह गया. अभी तक तो मैं समझता था कि ये ही इज अ वाइज मैन, ये तो ही इज टॉकिंग एज दो ही इज गॉड. तो उसको थोड़ा डाउट हुआ. तो उसने कहा कि भाई सूर्य तो बहुत पहले हुआ था, आप तो अभी खड़े हैं मेरे सामने, तो उन्होंने फिर बोला नेक्स्ट वर्स में, तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं है. सो बेसिकली उन्होंने अपनी डिविनिटी बता दी. बिकॉज चिन्मयानंद जी वॉज एक्सप्लेनिंग कि जब तक कोई अथॉरिटी से कुछ बोले ना, कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता है. तो उन्होंने अपनी अल्टीमेट अथॉरिटी पूरा रिवील नहीं किया, अभी थोड़ा विजिटिंग कार्ड दिया. पूरा रिवील करते हैं वो चैप्टर 11 में. जब आपने सुना होगा विश्व रूप दर्शन बोलते हैं उसको,
जो उन्होंने बताया पूरा दिखा दिया कि भाई पूरा संसार मुझ में ही निहित है, तो वो बात अलग है. So that's what happened in chapter 4. And another very important verse is about what we call right now in India caste system. That word is not in the Shastras. In the Shastras, they call it Varna Vyavastha. तो उसका जो अगली रूप बन गया है ना, उसका जो एक्चुअली क्या है वर्ण व्यवस्था, वो उन्होंने समझाया यहाँ पे. और वर्ण व्यवस्था, टू बी वेरी ब्रीफ राइट नाउ, इज कि हर एक इंसान का एक मेंटल मेकअप होता है. व्हेन वी आर बोर्न विद अ सर्टेन मेंटल मेकअप, अकॉर्डिंग टू दैट मेंटल मेकअप we have our mental temperament. So mental temperament क्या चीज़ है? किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है. तो वो दैट इज कॉल्ड लाइक वर्ण व्यवस्था. तो तुम्हारा जो मेन इंटरेस्ट है ना, उसके अनुसार तुम अपनी ड्यूटी पिक करके काम करो तो तुम बहुत सक्सेसफुल होगे. एंड मंजुला जी, यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल इन दिस. आपने अपना जो है ना कुकिंग का जो हुनर है उसको आपने मतलब क्या कहते हैं, पॉलिश किया. एंड यू आर सो गुड एट इट, सो दैट्स व्हाट इज टॉकिंग अबाउट इन दिस वर्ण व्यवस्था. इट्स नॉट लाइक बाय बर्थ, जैसे हम इंडिया में बना दिया ना, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ऐसा नहीं है. इट इज अकॉर्डिंग टू द गुना एंड कर्म. Your varna is according to your guna and karma. And guna means, I don't want to go too much in detail, but there are 3 gunas, rajasic, tamasic and sattvic. उसका जो मिक्सचर है, उसका जो प्रपोर्शन है, उसके अनुसार गुण है. और जैसा आपका गुण होगा वैसे आप कर्म करोगे. तो ये कहाँ से आ गया ये ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण? बिकॉज it is more likely that a person will be like that, but it is not necessary that ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा. बिकॉज उसकी जीन्स भी वही हैं, उसका वातावरण भी वही है, उसको वही शिक्षा दी गई है. तो द पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई कि ही विल बी, नॉट नेसेसरली. तो भगवद गीता में कहीं नहीं कहा है कि वो बर्थ से ब्राह्मण और ये क्षत्रिय बन जाएगा. वो गुण और कर्म से बनता है. सो वो वर्स है इसमें. एंड देन what another thing is कि चैप्टर 3 में उन्होंने कर्म योगा बताया और चैप्टर 4 में उपासना बताई है. उपासना इज सम अदर काइंड ऑफ प्रैक्टिस, साधना जिसको बोलते हैं हिंदी में. साधना टू प्योरीफाई आवर माइंड, बिकॉज द गोल वॉज टू प्योरीफाई आवर माइंड. एंड वो साधना में ये सब आ जाता है. different people pick different sadhanas. Some people can pick, I want to do this puja, this vrat, ये दान, ये तप, ये उसका मेन पर्पस है टू प्योरीफाई द माइंड. उनसे भगवान नहीं मिल सकता. उससे हमारा मन पवित्र होगा. पवित्र मन में ज्ञान उभरेगा. ज्ञान से हमको भगवान से साक्षात्कार होगा. दैट्स द होल प्रोसेस. सो दैट्स व्हाट इज इन चैप्टर 4. Many different sadhanas are given. That's what we kind of finished that, and we are moving forward. And now that you can join the class and we'll move forward. So I don't know, I gave a brief overview. Anybody has any question about this? I gave a lot of stuff, but I don't know. I apologize if I bombarded you with too much. I hear you. Huh? You were on mute for some reason. Who? Manjula ji, she just said thank. Okay, now she's unmuted. No, आप अपना ना ये कीजिए. Maybe your volume is down on your device. Just look at the volume. Yeah, even if she's unmute, you can't hear her. Volume may be totally down. I could hear you before, Manjula ji. अभी थोड़ा सा सुन रहा है, उसको हाई कीजिए. और Right. Can hear you a little bit now. आप कंप्यूटर पे हो क्या? तो उसमें एक यूजुअली साउंड का बटन होता है. कैन हियर यू. थोड़ा पास आइए डिवाइस के. अब बोलिए. आई डोंट नो क्या हुआ. We could hear her perfectly well before.
I'll do. फिर से अनम्यूट कीजिए अपने आप को. मैंने म्यूट किया आपको, बट फिर से अनम्यूट कीजिए. अनम्यूट तो कर दिया, बस सुनाई नहीं दे रहा. Anyway, and it says we can't do it. I don't know. Anybody can help her technically? Please do. Most likely the volume का problem है. I can hear her saying volume तो बहुत high है. I can hear her saying that. Oh. The But we other, can't hear you. You're so soft. We almost cannot hear you. what you can do, Manjula ji, if you like, you can leave the thing and rejoin it. Maybe that might do something. Leave the meeting and rejoin. Anybody else has any question? Did this help, the summary? Okay, can you hear me now? Better. Better? Yes, definitely better. But not enough. But No, I don't know. no, see, now I can hear you. आप अपना ये कीजिए. सॉरी, फेस आपका नहीं दिख रहा है. वीडियो ऑन कीजिए. There is usually a small icon. Icon at the left hand corner of the. मेरे में तो left hand corner में है. कोई बात नहीं, आपका चेहरा आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं. हाँ, आवाज सुनाई दे रही है. आवाज सुनाई दे रही है. एक बार में एक ही चीज होती है. कोई बात नहीं. मैंने पहली बार गीता का सुना है और मुझको अच्छा लगा. ओके. मेरे ख्याल से नहीं, मैं ज्वाइन करूंगी. I will come back to the next class. Okay, sure, and you know, I'm glad. That means I because this is something that I just thought that might help you, because I know if you have never studied. हाँ, भी आपका चेहरा भी दिख रहा है, तो कभी कभी लोगों को apprehension होता है कि भाई, oh, I don't know where will I fit and this and that. It is, and then we were talking about it. भगवद गीता को कृष्ण भगवान ने इस ढंग से दिया है कि वो सभी के लिए है. कोई देश काल कोई बंधन नहीं है, और खाली इसमें श्रद्धा होनी चाहिए बस. You know, like you are on our group. I sent that verse कि किसको भगवद गीता नहीं सुननी चाहिए, जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको नहीं वो बतानी भी नहीं चाहिए. राइट, दैट वर्स इज वेरी ब्यूटिफुल. और उसमें थोड़ा बेसिक दिया है कि यू नो, जो लोग दान तप और ये सब नहीं करते हैं, और यू नो, आई नो दैट at all the different levels in this group everybody does it. I already know it, you know. So people who are super selfish, उनको ये घुसेगा नहीं दिमाग में, you know. So अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं. आशा जी कहना चाहती हैं. Okay, I will speak. You know, we have been following your classes for a while now, but today was very, very helpful. Oh, very nice. Okay, good. Very well put. Good. Yeah. You know, to summarize, you know, we also joined midway. So to summarize the whole thing, it was very helpful. Thank you. Good, great. I'm happy. Yeah, मैंने भी गीता पढ़ी नहीं है, पर इसीलिए I wanted to hear from the beginning. It was very nice. Very nice. Good. That's the whole idea, that we want to get enthusiastic about it. And because I wanted to, and I have to thank Manjula ji for this, because मेरे मन में ये ख्याल. No, thank you. I have been trying for how long to join, and I always had an excuse. Okay. So very good. At least आपको हुआ. But मैं क्या कहने वाली थी कि जब आपकी वजह से मुझे ये इंस्पिरेशन मिला कि मैं ऐसा ये करूं, फिर जो ने बोला कि you know, record this class. But because of that, I was looking at some of my notes and this and that, and I came across like treasures in my own house. And what I was thinking is that every time I will share few things from this treasure box that I have, कि भाई, why Bhagavad Gita? That keeps our enthusiasm going. You know,
I thought, कुछ हमेशा कोई reason होता है. बोलते ना, there's always reason for the season. So that's what it is. That was a reason that this happened, and it is only going to benefit all of us. And it's Lord Krishna's wish that all this happen. So very good. और कुछ किसी को कोई प्रश्न, कुछ comment? Thank you. Yeah, and I think I can relate some of the thing which is making more easy. Yeah. And that's the whole idea. See, जो शास्त्र वैसे like वेदों को कुछ समझ में नहीं आएगा हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो. It is so complicated. So that's why, and Upanishads are also not that easy. But Upanishads ko, because wo 11 Upanishads ko, like so many people have commented, and Chinmayanand ji, and also we are trying to tackle it. But as we are studying, Anil ji हैं, इन्होंने सब काफी time से join किया हुआ है. It kind of complements each other, right? We study this and we study that, and then we understand. अगर खाली उपनिषद पढ़े वो भी बहुत difficult है. लेकिन Bhagavad Gita is the most amazing jewel from India. And we can't even call it a religious book. It's a philosophy of life. Like, it talks about life in general and how these, just like the laws of gravity or, Agni ka law वगैरह, it's an eternal thing, right? That's how इसमें जो ज्ञान दिया गया ना वो eternal ज्ञान है. तभी हम लोग का जो word use किया गया सनातन धर्म. Hinduism, this word is not the right word because it is coined by the British or whatever Western people. We don't have no such words Hinduism like that. इसको देखो सनातन धर्म means eternal because this never changes. आप देखोगे 5,000 साल पहले जो कृष्ण भगवान ने बोला मन की स्थिति वो अभी अप्लाई करती है हमको. All those things are part of nature and they are the same. Just like the waves are same, like they were millions of years ago. Same way our thought waves have a pattern, and they are like that. So Thank you. On this note, I will close and I'll do the last prayer, and then we'll close it. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukha bhag bhavet. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Okay, see you all, everybody, next week. Thank you. Hari Om. Thank you. Thank you, Uma. You're welcome. Thank you.